Jai Hind students. Students, today I am going to start with the last topic of the chapter goodwill, and that is capitalization method. Now, under this method, goodwill is calculated in two ways. One is capitalization of average profit and the other one is capitalization of super profit. Now, under this method, capitalization of average profit, goodwill is calculated as total capitalized value of the firm minus net assets. This is the formula for calculating goodwill. अब नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि वही सेम फॉर्मूला लग रहा है जो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने यूज़ किया था. नेट एसेट्स आर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल इन द बुक्स, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़. ठीक है. Now, how to calculate capitalized value of the firm? Capitalized value of business is equal to average profit into 100 upon normal rate of return. अब जब रेट यानी परसेंटेज डिनोमिनेटर पे आएगा तो उसको रिमूव करने वाला जो 100 है, परसेंटेज को रिमूव करने वाला 100 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. Under this method, goodwill is equal to super profit into 100 upon normal rate of return. Very simple. Now, in order to calculate super profit, what we require is average profit and normal profit, because formula for calculating super profit is average profit, actual average profit minus normal profit. Now, let us take up one sum from T.S. Garewal, class 12, volume 1. It is question number 38. A business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years. Find out the value of goodwill by capitalization method, given that the assets of the business are rupees 10 lakh and its external liabilities are rupees 1 lakh 80,000. The normal rate of return is 10%. Okay, let us start with this question. Now, what we require for average profit method, capitalization of average profit method, we require capital employed. Okay, now capital employed is equal to all assets, that is except goodwill, fictitious assets and non-trade investment minus outside liabilities. Okay, now कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स. ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल एसेट्स एज इट इज़ गिवन. द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज़ 10 लाख. इसमें नहीं लिखा है कि गुडविल, फिक्टिशियस एसेट इसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है. सो व्हाट वी विल एज्यूम कि जितने एसेट्स बिजनेस के दे रखे हैं वही एसेट्स ऑल एसेट्स की लिस्ट में आ रहे हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं. मीन्स ये 10 लाख ये सब कुछ माइनस करने के बाद ये क्या क्या? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सो 10 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज गिवन 1,80,000. तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स आ गया 8,20,000. नेक्स्ट वी रिक्वायर इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ एवरेज प्रॉफिट साफ साफ फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की थी, उसमें दे रखा था कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. तो 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई 10 लाख. तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स. ठीक है, जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड. Total capitalized value you have calculated, it is 10 lakh, minus net assets also you have calculated, it is 8,20,000. So the value of goodwill is rupees 1,80,000. Okay, I hope you understood this. It was very simple. Now let us take up one more question, and this is question number 41 of your book T.S. Garewal, class 12, volume 1. Question number 41. I have to raise the book. Okay. Yes, now it is clear. A firm earns profit of rupees 5 lakh. Normal rate of return in a similar type of business is 10%. Value of total assets excluding goodwill and total outsiders liabilities as on that date of goodwill are rupees 55 lakhs and rupees 14 lakh respectively. रिस्पेक्टिवली मीन्स जिसका नाम जैसे लिखा गया है वैसे ही उसका अमाउंट है. तो सबसे पहले नाम लिखा गया है टोटल एसेट्स का,
तो टोटल एसेट्स हैं 55 लैक्स। उसके बाद नाम लिखा गया है टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ का, वो है हमारी 14 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों तरीके से हमें बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट नाउ। फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वी रिक्वायर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए है? सबसे पहले चाहिए है एवरेज प्रॉफिट, फिर हमें चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले से ही हमें दे रखा है कि कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज़ 10%। एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत सारे सालों का हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख है उसी को हम एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। फिर हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, फिर हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स। सो फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वी रिक्वायर, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? जब हमें पता होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ठीक है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए है और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। ऑल एसेट्स अभी मैंने रीड किया था 55 लैक्स थे, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ 14 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स आ गया आपका ₹41 लैक्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ एज एवरेज प्रॉफिट इज नॉट गिवन, बल्कि ये दे रखा है कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 5 लाख, तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10, जो कि आ गया हमारा ₹50 लैक्स। अब हम अपना गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस 50 लैक्स माइनस नेट एसेट्स 41 लैक्स आपने कैलकुलेट किया, तो गुडविल इज ₹9 लैक्स। ओके, नाउ वी कम टू बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट ही चाहिए, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम वही लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे अभी यस, ये किया था हमने कैलकुलेट। कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लैक्स, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लैक्स इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4,10,000। अब सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 5 लाख माइनस 4,10,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटू 100 अपॉन 10 कर दिया। सुपर प्रॉफिट आया था हमारा 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो हो गया हमारा 9 लाख गुडविल, ठीक है। I hope you have understood this. Now I'll take up one more question as the video is very small one. That is, and I think so मैंने उसे assignment में भी दिया था. I have given it in assignment also. Question number 48 of your book T.S. Garewal Class 12 Volume 1. From the following information, calculate value of goodwill of the firm at 3 years purchase of average profit, at 3 years purchase of super profit, on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit. अब ये 4 मेथड से आपसे गुडविल कैलकुलेट करने को बोला गया है, and the information that is given to you is average capital employed is ₹6 lakh, net profit or loss of the firm for the last 3 years ended are 31st March 2018 2 lakh, 31st March 2017 1,80,000, 31st March 2016 is 1,60,000, ठीक है। Normal rate of return in similar businesses 10%. Remuneration of ₹1 lakh to partners is to be taken as charge against profit. यानी जो remuneration partners को दिया जा रहा है उसको compulsory बनाया जा रहा है profit में से देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे word use किया गया है is charge against profit, यानी compulsory है देना। Next information is assets of the firm excluding goodwill, fictitious asset and non-trade investment is ₹7 lakh.
whereas partners capital is rupees 6 lakh and outside liabilities is rupees 1 lakh. ठीक है, so let us start now. क्वेश्चन नंबर 48. ये जो 4 तरीके से हमें गुडविल कैलकुलेट करने को बोला गया है, उन सबको मिला के हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. हमें चाहिए है एवरेज प्रॉफिट, हमें चाहिए है सुपर प्रॉफिट, हमें चाहिए है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, हमें चाहिए है नेट एसेट्स. इन चारों को मिला के हमें चारों फॉर्मूलाज कैलकुलेट करें तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए. तो हम क्या करते हैं, अपना सीधे केसेस के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हम अपना जो जो कुछ चाहिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो है हमारा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड करके कैलकुलेट होगा. अब तीनों सालों का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000. बट पॉइंट नंबर डी में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, और वो मिसिंग है रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख पर एनम. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. यानी हर साल 1 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दी जानी कंपलसरी है. अगर कंपलसरी है प्रॉफिट में से देना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल के प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपया माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले साल है हमारा 31 मार्च 2017 और उसका प्रॉफिट था हमारे 31 मार्च 2018 और उसका प्रॉफिट था हमारा रुपीज़ 2 lakhs. तो 2 lakhs में से 1 lakh माइनस कर दिया रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट रिमेनिंग इज रुपीज़ 1 lakh. 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट था 1,80,000. आफ्टर डिडक्टिंग 1 lakh रेम्यूनरेशन द प्रॉफिट रिमेनिंग इज रुपीज़ 80,000. अगेन द नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2016. द प्रॉफिट इज 1,60,000. तो 1,60,000 आफ्टर डिडक्टिंग 1 lakh फ्रॉम दिस प्रॉफिट द प्रॉफिट रिमेनिंग इज रुपीज़ 60,000. सो व्हाट वी आर डूइंग, 1 lakh plus 80,000 plus 60,000 divide by 3. We come to the total profit is 2,40,000 divided by 3. Therefore, the average profit is rupees 80,000. Next, we have to calculate normal profit. Normal profit is equal to capital employed into normal rate of return upon 100. Capital employed is given to you in the question. It is 6 lakhs into 10 upon 100. Normal rate of return is also given 10%, 10 upon 100. So, normal profit is 60,000. Next, with the help of average profit and normal profit, we can calculate super profit. Therefore, super profit is equal to average profit minus normal profit. It is 80,000 minus 60,000. So, super profit is rupees 20,000. Next, we require is net assets. Net assets, although it is capital employed and the capital employed is given to you 6 lakhs, still because the information is given regarding all assets and outside liabilities, therefore I am going to calculate here for you the value of net assets. Net assets, all assets excluding goodwill, fictitious asset and non-trade investment minus outside liabilities, and all assets are given excluding all these things. It is 7 lakh minus outside liabilities 1 lakh. So net assets are 6 lakhs. Next we require is capitalized value of business, which is average profit into 100 upon normal rate of return. So average profit we have already calculated here in the beginning. It was 80,000. So capitalized value of business, for this average profit we will put the amount 80,000 into 100 upon 10. It is 8 lakh. Now we will start our solution process. Calculation of goodwill. Case 1. At 3 years purchase of average profit. Goodwill is equal to average profit into 3. Average profit was 80,000. 80,000 into 3. Goodwill is 2,40,000. Next, case number 2. At 3 years purchase of super profit. Goodwill is equal to super profit into 3 because 3 years purchase is given to you. So super profit we have calculated here. Super profit was rupees 20,000. So we'll put the same amount here, 20,000 into the number of purchase years. 3 is given to you in the question. So the goodwill is rupees 60,000. Case number 3, on the basis of capitalization of super profit.
Goodwill is equal to super profit into 100 upon normal rate of return. Super profit calculate किया था आपने, it was 20,000 into 100 upon 10. So goodwill is rupees 2 lakh. On the basis of capitalization of average profit, goodwill is equal to capitalized value of business minus net assets. Everything we have calculated earlier. Capitalized value was rupees 8 lakh. Net assets were rupees 6 lakhs. So 8 lakhs minus 6 lakhs is equal to 2 lakh. So goodwill under capitalization of average profit is rupees 2 lakhs. This is over now.